Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. This is part 5th in financial accounting and today I am going to cover the following topic that is ledger, meaning and definition, perform of ledger, rules of posting, closing and balancing of accounts. Ledger, meaning and definition. So business transactions are first entered in journal or special purpose subsidiary books as we already discussed. The next step is to transfer the entries to respective accounts in ledger. Okay, all entries recorded in journal or special subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger. In short, we can say the ledger is a book which contains all accounts of the business enterprise, whether personal, real or nominal. According to L.C. Cropper, the book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called a ledger, right? So the basic objective of accounting is to ascertain how much amount is due from each customer or how much amount the firm has to pay to each supplier and how much is the amount of purchase sale during a particular period, and we can say how much amount has been spent on each head of expenditure and how much amount has been earned on account of each head of income. Right, so the journal fails to provide us these information because it is just a chronological record of daily transaction of a business, right? So transaction of the same nature are not recorded at one place in the journal, right? So that is why in this we need a ledger, right students? So in ledger, all accounts are opened on a separate page in the book, so all the transactions pertaining to an account are collected in one place in the ledger, right? And see, this is the performer of the ledger. So each ledger account is divided into two equal parts. The left hand side is called the debit side and the right hand side called the credit side, right? As you can see, this is the specimen of ledger. You can see, first of all we start with the debit side, date, month and year. Then to start हम करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी एग्जाम्पल है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल लिया कैश टू कैपिटल, राइट? कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पर मेरा एक लेजर बनेगा कैश का और एक लेजर मेरा बनेगा कैपिटल अकाउंट का. तो क्योंकि कैश का मैं लेजर बना रही हूँ तो कैश डेबिट साइड है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टू कैपिटल, ठीक है. तो जिस साइड जो बैलेंस होगा, यानी नेम ऑफ द क्रेडिट इन जर्नल, तो कैपिटल का नाम आएगा क्योंकि वो क्रेडिट में है, राइट? पर कैश का लेजर बना रही हूँ पर कैश डेबिट में है तो वो अकाउंट जो है वो डेबिट में आएगा. सेम जब मैं कैपिटल का लेजर बनाऊंगी तो कैपिटल मेरा जो है वो क्रेडिट में है, बट मैंने यहाँ अकाउंट कौन सा डालूंगी, कैश डालूंगी. पर क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है लेकिन कैश डेबिट में है तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड की बात कर रही हूँ मैं, बाय नेम ऑफ डेबिट इन द जर्नल, राइट? सो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, ठीक है. नेक्स्ट, रूल्स ऑफ पोस्टिंग. सो ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस, right? All transaction related to an account entered at one place. In other words, we can say two separate accounts should not be opened for posting transaction relating to the same account. If there are two customers with similar names, their account should be distinguished by writing their address against their name, right? Then the word to is used before the account which appear on the debit side of an account, right? Similarly, the word by is used before the account which appear on the credit side of an account. Next is, if an account has been debited in a journal entry, the posting in the ledger should also made on the debit side of such account, जो हम यहाँ पे discuss कर चुके हैं. So in the particular column, the name of the other account which has been credited in a journal entry should be written for reference. Or if an account has been credited in a journal entry, the posting in the ledger should be made on the credit side of such account. So in the particular column, the name of the other account which has been debited in a journal entry should be written for the reference. क्या मतलब हुआ इसका कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल है कैश टू कैपिटल, तो अगर मैं कैश का लेजर बना रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल, राइट? तो मैं रेफरेंस के लिए लिख सकती हूँ कि किस अकाउंट के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ डेबिट की है, राइट? और सेम अगर मैं कैपिटल का लेजर बना रही हूँ तो मेरा बाय कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड में, राइट? तो मैं रेफरेंस के लिए ले सकती हूँ कि मैंने किस लिए ये अकाउंट बनाया है, राइट? So similar amount which has been posted on the debit side of an account should be also be posted on the credit side of another account. तो amount similar होना चाहिए, मतलब आपका ledger जो मैच करना चाहिए, right? Move to an example. On 1st April 2017, sold good for cash rupees 20,000, pass journal entry and post it into the ledger, right? तो journal entry cash to sales होगी, ठीक है, कैश टू सेल्स होगी, 20,000 की कुछ सेल किए गए तो कैश टू सेल्स होगी. अब इसका मुझे लेजर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे मेरे दो अकाउंट है कैश और सेल्स,
मैंने यहाँ पे लेजर बनाया कैश का और सेल्स का। अब देखो यहाँ पर मैंने कैश टू सेल्स किया, तो मेरा कैश जो है वो डेबिट साइड है, तो मतलब मैं डेबिट साइड में एंट्री पोस्ट करूंगी, है ना। तो पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगी टू सेल्स की एंट्री, क्योंकि कैश डेबिट साइड है, तो मैं यहाँ पर टू सेल्स डेबिट साइड में एंट्री करूंगी। सेम सेल्स अकाउंट में मैं, क्योंकि सेल्स मेरा क्रेडिट साइड है, तो मैं क्रेडिट साइड एंट्री करूंगी और सेम अमाउंट होगा, राइट। नाउ मूव टू क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, देखो कैश आपका रियल अकाउंट होता है और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है नेचर ऑफ अकाउंट जज करना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है, जो क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट होता है, वो डिपेंड करता है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अलग अलग होती है सबकी, तो इसलिए आपको जज करना जरूरी है। अभी इस स्लाइड में सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, अभी क्लोजिंग, बैलेंस, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी क्लोजिंग और बैलेंसिंग की बात नहीं हुई है, वो भी नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगी तो उसमें बता रखा है, ठीक है। नाउ मूव टू क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। So balancing of an account means that the debit and credit side are total, and the difference between the two sides inserted on the side which is shorter as to make their totals equal, right. If the debit side exceeds the credit side, the balance is called a debit balance, or the other hand, if the credit side exceeds the debit side, the balance is called a credit balance. So, at the end of an accounting period or whenever needed, a businessman will be inserted in knowing the position of various accounts. For this purpose, the accounts are balanced, right? So, balancing इसलिए की जाती है, जो मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसकी अभी अकाउंटिंग की पोजीशन क्या है, right? So, as we already discussed that all the accounts are classified into three categories according to the nature: personal, real, and nominal. So there are different methods of balancing of each of these three categories. Number one is closing of personal account. So from the balancing of these accounts, we can ascertain as to how much amount is owing from each individual customer or how much amount is owed to each individual creditor. If a personal account shows a debit balance, it indicates the amount owing from him. On the contrary, if a personal account shows a credit balance, it indicates the amount owing to him, right. So in case the total of the debit is the excess of credit side, the difference between the two is inserted on the credit side of the account in order to make their total equal. The word balance carried down are written against the amount of difference. In the next accounting period, the balance is brought down on the debit side by writing the words to balance brought down, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहा है वो, कि अगर जो है डेबिट साइड आपका क्रेडिट साइड से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो मतलब जो साइड शॉर्टर आएगी वहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे कि ये शॉर्टर में आ रही है, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। कैरी डाउन मतलब बैलेंस, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है, ये कैरी डाउन हो गया। ब्रॉड डाउन मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में या नेक्स्ट मंथ में जब भी आपका लेजर बन रहा है उसमें वही बैलेंस लेके चल रहे हैं, राइट। ये हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। So on the contrary, the total of the credit side in the excess of the debit side. अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा निकलता है तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज इंसर्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इन ऑर्डर टू मेक दैट देयर टोटल इक्वल, ठीक है, राइट। अब बात आती है रियल अकाउंट की। सो क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट, मेथड ऑफ क्लोजिंग द रियल अकाउंट इज द सेम दैट ऑफ द पर्सनल अकाउंट। व्हेन बैलेंस दीज विल ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स में होता क्या है कि जनरली इसका जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस आता है रियल अकाउंट का, क्योंकि रियल अकाउंट क्या होता है, जो कि एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, कैश हो गया आपका, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, तो ये रियल ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा आपका जो देखो, जैसे आपका फाइनल अकाउंट की मैं बात करूं तो फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आती है, ठीक है। तो जो आपका पर्सनल और रियल अकाउंट का जो बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा बैलेंस शीट में फॉरवर्ड होता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमेशा आपके गेन्स और एक्सपेंसेस को, इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज अकाउंट डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग, एज द मेन पर्पस ऑफ ओपनिंग द नॉमिनल अकाउंट इज टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. All such accounts are transferred to the trading and profit and loss account of the firm at the end of the financial period.
ठीक है। अकाउंट रिलेटिंग टू लाइक गुड्स सच एज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड. These accounts are closed by transferring them to the trading account at the end of the financial year, right? और सेम जैसे आपके सैलरी अकाउंट हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, दीज अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इन अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों ये वहां जाके ट्रांसफर होके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं. एक्सपेंसेस तो सारे क्लोज हो गए ना. अब आप कहेंगे बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती. बच्चों बैलेंस शीट जो आपकी एसेट है तो लॉन्ग पीरियड के लिए है ना. आज मशीनरी ली, इस साल मशीनरी, तो ये थोड़ा कि अगले साल आप मशीनरी को एबॉलिश कर दोगे. ऑब्वियसली आप एसेट में वही मशीनरी शो करोगे, जस्ट उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका होगा. बट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए वो जाके क्लोज हो जाते हैं ट्रांसफर होके. तो इसलिए हम लेजर में नॉमिनल अकाउंट को क्लोज नहीं करते. क्लोज इन द सेंस कि हम बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं लिखते, अदरवाइज रियल और पर्सनल अकाउंट में हम सेम करते हैं, राइट. Now example of ledger and posting. Start with the journal. Mr. Ram started business with cash rupees 5 lakh on 1st June 2003. ठीक है, ये हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की. कैश टू राम कैपिटल 5 lakh. Try to find out how many accounts involved in the journal. कैश और राम अकाउंट, राइट. सो द दो लेजर हम बनाएंगे, कैश अकाउंट का और राम कैपिटल अकाउंट का. नाउ दिस इज द कैश अकाउंट. ये कैश अकाउंट का लेजर है क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट होता है. ठीक है, रियल अकाउंट होता है तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा. अब यहाँ पे लिखेंगे कैश हो रहा था, यहाँ पर था कैश टू राम कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैश जो है डेबिट का है तो डेबिट साइड आ जाएगा और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा. और फिर नेक्स्ट जैसे जून जब क्लोज हुआ, जुलाई में ओपनिंग हुई तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया. ठीक है, राम्स कैपिटल अकाउंट में भी सेम होगा. ठीक है, ये क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे बाय कैश क्रेडिट साइड आएगा और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नॉमिनल अकाउंट होता तो हम ना बैलेंस कैरी डाउन करते ना ब्रॉट डाउन करते, राइट. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.